রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এক নতুন মাইলফলক সৃষ্টির অপেক্ষায় বাংলাদেশ। ১১০ একর জমির বুকে আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সার কারখানা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। साउथ एशिया का सबसे बड़ा सबसे पहला जो टनल बांग्लादेश ने बनाया, अब उसके बाद एक और बड़ा कारनामा बांग्लादेश कर रहा है। यकीन नहीं आएगा आपको और आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि 1971 से अलग होने वाला बांग्लादेश इतना ऊपर चला जाएगा और इतनी ज़्यादा तरक्की कर लेगा। अब एक और बहुत बड़ा जो बांग्लादेश ये माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले ये आप सुन लें कि पद्मा ब्रिज जब बना लोगों ने इसके ऊपर क्या कुछ कहा और तारीफ़ों के पुल बांध दिए। एक ऐसा पुल बनाया जिसके बाद सबको उसकी अप्रिसिएशन करनी पड़ी, मजबूरन करनी पड़ी। अब जनाब उन्होंने अंडर रिवर अब वो जो टनल बनाई, कर्नाफुली टनल, वो हैरान किया। अब जनाब वो कर रहे हैं दुनिया की तो नहीं, साउथ एशिया की पहली और सबसे बड़ी, जी हाँ, फर्टिलाइज़र कंपनी, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बना रहे हैं। जी हाँ, जापान और चाइना ने मिलकर ये बनाई है बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश ने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो ये है जनाब साउथ एशिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी। और ये जो फैक्ट्री बनी है, ऐसा लगता है इसका जब आप ड्रोन व्यू देखेंगे, एरियल व्यू देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जोड़कर ये एक फैक्ट्री बनी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कितनी बड़ी फैक्ट्री है। और फिर इसके अंदर आप ये देखेंगे, पहले जो फर्टिलाइज़र था बांग्लादेश वो इंपोर्ट करता था भारत से ना फर्टिलाइज़र। अब ये बांग्लादेश खुद से अपनी भी ज़रूरत पूरी करेगा और फिर दूसरे ममालिक को, श्रीलंका को, नेपाल, भूटान, इन ममालिक को एक्सपोर्ट्स भी करेगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे बांग्लादेश को कितना ज़्यादा फ़ायदा फ्यूचर में होने जा रहा है। इसी के ऊपर वीडियो है बांग्लादेश मीडिया की। पहले हम व्यूअर्स वीडियो देखेंगे, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विज़िट किया है, तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। আলোর রোশনায় উঁকি দিচ্ছে আরও একটি নতুন সম্ভাবনা। ৫ বছরের নির্মাণযোগ্য পেরিয়ে শিল্প, বাণিজ্য আর কৃষিপ্রধান নরসিংদীতে প্রস্তুত ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে পরীক্ষামূলক উৎপাদনও। রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এক নতুন মাইলফলক সৃষ্টির অপেক্ষায় বাংলাদেশ। ১১০ একর জমির বুকে আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সার কারখানা। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় ঘোড়াশাল পলাশ সার কারখানার উৎপাদন হবে সাশ্রয়ী। একই পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করে এখানে মিলবে অন্য সব কারখানার তুলনায় 3 গুণ বেশি সার। এছাড়া পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্ল্যান্টে ব্যবহারের মাধ্যমে বাড়ানো যাবে সারের 10% উৎপাদন। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট গ্রিন ফার্টিলাইজার ইন বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মাধ্যমে লোন নিয়ে কিন্তু এই প্রজেক্টটা আমরা করছি। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ফার্স্ট কনসার্ন হলো এনভায়রনমেন্ট। তারা প্রতি 3 মাস পরে পরে 2 জন এক্সপার্ট আসে, সব কিছু দেখে অ্যানালাইসিস করে তারপরে কনফার্ম করে যে হ্যাঁ, আমরা পরিবেশে কোনো দূষিত পদার্থ দেই না। দেশে কৃষি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ ইউরিয়া সারের বার্ষিক চাহিদা 27 লাখ টন। এর মধ্যে 9,24,000 টন যোগান দিতে সক্ষম হবে ঘোড়াশাল পলাশ সার কারখানা। অর্থাৎ পুরো সক্ষমতায় চালাতে পারলে দেশে ইউরিয়া সারের 35% চাহিদায় মেটাতে পারবে স্থাপনাটি। ফলে বড় অংশেই কমে আসবে আমদানি নির্ভরতা। নীতি নির্ধারকদের প্রাক্কলন, এতে বছরে বাঁচবে 8,000 কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। আমরা প্রচুর ফরেন এক্সচেঞ্জ সেভ করতেছি, যেটা আমার ইম্পোর্ট করতে হয় প্রায় 20 লাখের মতো, 15-20 লাখ আমাকে করতেই হয় প্রতি বছর। সেটা আমার সেভ হয়ে যাচ্ছে এবং এটা আমার ইকোনমিকে আবার সচল করছে সেখানে। আর আমরা এগ্রিকালচার সেফটি, ফুড সেফটি, এগুলি সব আমরা এখানে এই রেজাল্ট পাবো। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন, কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের 2 মাস আগেই শুরু হয়েছে সার কারখানাটির উৎপাদন।
আর এই স্থাপনা সুযোগ করে দেবে 30,000 মানুষের কর্মসংস্থান। কৃষিপ্রধান দেশে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে ঘোড়াশাল পলাশ সার কারখানার মতো বড় স্থাপনা মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে মনে করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। নীতি নির্ধারকদের মতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি অর্থনীতিতেও স্থাপনাটির অবদান হবে বহুমুখী, কমাবে আমদানি নির্ভরতা, বাঁচাবে বৈদেশিক মুদ্রা। ले जी, आपने वीडियो देख ली है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, बड़ा धमाका बांग्लादेश ने किया। फिर मातरबारी डीप सी पोर्ट को आप देख लें कि पाकिस्तान, श्रीलंका, फिर भारत भी उसको इस्तेमाल करेगा। सिंगापुर के बाद साउथ एशिया में एक बड़ी डीप सी पोर्ट वो भी बांग्लादेश के पास है। फिर आप देख लें कि बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान कर्नाफुली टनल को आप देख लें, यानी अंडर रिवर वो टनल बना के सबको हैरान कर दिया। ये डेवलप जो कंट्री हैं वहाँ पर तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप जो कंट्री है वहाँ पर साउथ एशिया में तो ये बहुत कम चीज़ें दिखती हैं ना। साउथ एशिया में पहला मुल्क बना बांग्लादेश के, उसने ये टनल बना दी। और फिर आप देखें कि पद्मा ब्रिज बनाया बांग्लादेश ने, वो भी एक बहुत बहुत बड़ा कारनामा था। और अब आप देख लें कि बांग्लादेश का एक और बड़ा कदम है तरक्की की तरफ, गामजन है बांग्लादेश। और अब ये फर्टिलाइज़र आप कंपनी को देख लें, इतनी बड़ी फैक्ट्री कारखाना बना रहा है बांग्लादेश। ये भी साउथ एशिया का सबसे बड़ा कारखाना होगा, सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। तो जो बांग्लादेश एक ब्लैकमेल होकर भारत से इंपोर्ट करता था फर्टिलाइज, अब वो नहीं करेगा, अब बल्कि वो दुनिया को देने वाला बनेगा। अब आप देखें कि जो चाइना और उसके मुकाबले में जापान है, इनकी आपस में बनती नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। आपको इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की जो खारिजा पॉलिसी है वो इतनी शानदार है, इतनी दमदार और जानदार है कि दोनों एक दूसरे के मुकाबले में, आपको पता है कि वो भी उभरती हुई बड़ी इकॉनमी है दुनिया की। और फिर जापान आपको पता है कि दुनिया में नई नई चीज़ें मुतारिफ करवाता है। अब ये दोनों की आपस में बड़ी लगती है, चाइना और जापान की, लेकिन दोनों को इकट्ठा करके उन्होंने ये फर्टिलाइज़र जो कंपनी फैक्ट्री है ये शुरू करवा दी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बांग्लादेशी जो हैं वो कितने समझदार हैं, कितना दोनों को आपस में मिलाया भी है और अपना काम भी निकाला है इन्होंने। इस बात से आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। खैर जी, ये तो आपने अब बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई अब साउथ एशिया में पहले तो इनके पास था कि बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान कर्नाफुली टनल, फिर पद्मा ब्रिज इतना बड़ा बना दिया इन्होंने, फिर उसके बाद रेलवे पद्मा ब्रिज बना दिया, रेलवे ट्रैक जो बछाया उसके ऊपर। और फिर आप देखें कि मातरबारी डीप सी पोर्ट, ये भी किसी के पास नहीं है। भारत इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उसके पास नहीं है। डीप सी पोर्ट नहीं है उसके पास। पाकिस्तान के, श्रीलंका, किसी के पास, अब बांग्लादेश के पास है। अब ये जनाब बांग्लादेश ये बना रहा है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बना गया है, इस पर आप बताइएगा जी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।